Hello friends, welcome to my all friends. In this new video lecture, we are talking about that primary cell culture. Okay, you can see that this is a small GIF. The lady making first of all the culture and then after that observe under the microscope, and you can see that observation is a very clear, right? So now we are talking about that cell culture. Yes, my name is Roshni Bhatt and you are watching my videos of that cell biology, and today's our topic is that cell culture. सेल कल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा जो प्राइमरी और इम्पोर्टेंट जो भी डेफिनेशन है उसके बारे में समझना बहुत ही ज़रूरी है. तो इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक टर्मिनोलॉजी विच इज़ रिलेटेड टू द अवर सेल कल्चर. The first one is that what is cell culture? Okay, the study suggests of that cell morphology, cell physiology, it is called the cell culture. Okay, तो cell culture के थ्रू हम क्या सीख पाते हैं? तो सेल की मॉर्फोलॉजी क्या है, सेल कैसे वर्क कर रहा है, वो सभी हम सेल कल्चर के थ्रू देख पाते हैं. ओके, द रिमूवल ऑफ द सेल्स फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स and their subsequent growth in favorable artificial environment, this is called the cell culture. Okay, तो क्या करना है, प्लांट्स और एनिमल्स में से जो भी सेल्स निकलेंगे उसे फर्स्ट ऑफ ऑल कोई आर्टिफिशियल मीडिया जो हमने रेडी किया है जिसमें क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, ग्रोथ फैक्टर्स है, एंटीबॉडीज है, ओके, एंटीबायोटिक्स है, विच इज favorable for that cell growth, and this is called the artificial environment, so that it is called that in vitro culture and also called as a cell culture. Okay, so now you are clear about that what is the cell culture. सिंपली हमें क्या करना है, तो प्लांट्स और एनिमल्स में से जो भी ऑर्गन में से आप निकालना चाहते हो सेल्स को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द रिमूवल ऑफ द सेल्स फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देन ग्रोथ subsequently in the favorable artificial environment, this is called the cell culture. Now the second terminology, understand mostly what is primary cell culture. Okay, the primary cell culture means that it is a one type of the cell culture or simply simple cell culture because it is formed by the culture cells which is obtained from the original tissue. Okay, तो क्या करना है हमें, ओरिजिनल टिश्यू में से हमने जो भी सेल्स निकाले, ओके, मैकेनिकल मेथड के थ्रू या फिर एंजाइमेटिक मेथड के थ्रू, तो उस सेल्स को हमें क्या करना है, जस्ट ग्रो करना है पेट्री डिश या फिर फ्लास्क में. अब जिसमें भी ग्रो करना चाहते हो उसमें आप ग्रो करोगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग द सेल्स फ्रॉम द ओरिजिनल टिश्यू एंड देन आफ्टर ट्रांसफर इनटू द फ्लास्क और flask and the petri plate, this is called the primary cell culture. Okay, now the most important term is that what is the cell line. Before we are talking about that cell line, the first understand one terminology is that confluency. Okay, confluency means that this terminology which is commonly used for that measurement of the cell numbers which are present in the flask, petri dish, and it is called that confluency of the cell growth. Okay, यानी कि सेल के अंदर बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो चुका है. ओके, मीडिया जो है वो फुल्ली एग्जॉस्टेड हो चुका है, फिर भी सेल का ग्रोथ अभी चालू है. ओके, तो दिस इज कॉल्ड दैट कंटिन्यूस सेल लाइन बन रही है हमारी. ओके, यानी कि कंटिन्यूस या फिर ट्यूमर सेल्स यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं ऐसा हम कह सकते हैं. ओके, बट आफ्टर अवर नॉर्मल सेल की अगर बात करें तो नॉर्मल सेल्स जो है वो फाइनाइट पीरियड तक ही ग्रो करते हैं. ओके, जैसे ही हम देखेंगे पेट्री प्लेट में कि बहुत सारे सेल्स जो है वो ग्रो हो चुके हैं, तो दिस इज कॉल्ड द कन्फ्लुएंसी. ओके, और कन्फ्लुएंट सेल कल्चर यानी कि द फुल्ली सेल नंबर्स विच आर ग्रोइंग इन द पेट्री प्लेट या फिर फ्लास्क, this is called the confluency, means that high amount of cell growth which are founding in the petri plate, this is called the confluency, right? Now we are talking about that cell line. People always confused when making primary cell line. Okay, हम प्राइमरी सेल लाइन कब बनाएं
उसका एक भी क्राइटेरिया होता है कि जब आप सेल लाइन बनाओगे. ओके, द फर्स्ट क्राइटेरिया इज दैट whenever you are observe continuously our cell culture, you can ensure that this is a time period which make the primary cell line. Okay, फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कि जब न्यूट्रिएंट्स और ग्रोथ फैक्टर्स कल्चर में से फुल्ली एग्जॉस्टेड हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए, तब हमें क्या करनी होगी, सब कल्चर करना होगा, प्राइमरी सेल कल्चर करना होगा, और दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी सेल लाइन. Okay, and the second criteria is that we want to grow particular cells in our culture, so must make the primary cell line. Okay, कि अगर हमें particular cells का growth चाहिए, यानी कि मैंने pancreas का cells लिया है. Okay, pancreas is a one type of the organ. pancreas से निकलकर हमने टिश्यूज को, फर्स्ट ऑफ ऑल टिश्यू को ब्रेक डाउन किया बाय द हेल्प ऑफ मैकेनिकल मेथड, और देन आफ्टर मैं उसे लेकर गई प्राइमरी कल्चर में, उसे ग्रो किया. देन आफ्टर प्राइमरी कल्चर के बाद मैंने देखा कि बहुत सारे सेल्स यहाँ पर ग्रो हुए हैं मॉर्फोलॉजिकली और जो भी फिजियोलॉजिकली, सभी सेल्स जो है वो अलग अलग है, क्योंकि पेंक्रियास के अंदर अलग अलग सेल्स होते हैं. ओके, वी नो अबाउट दैट, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स. ओके, तो मुझे चाहिए बीटा सेल्स. ओके, तो बीटा सेल्स को मैं फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिकली फ्लास्क को या फिर पेट्री प्लेट को माइक्रोस्कोप के अंदर रखूंगी, और देन आफ्टर मैं उसको क्या करूंगी कि बीटा सेल की मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को पहचानूंगी, और उसके बाद उस बीटा सेल्स को फर्स्ट सब कल्चर करूंगी, और दिस फर्स्ट सब कल्चर इट इज कॉल्ड द प्राइमरी सेल लाइन. ओके, नाउ we are jumping about that. First definition is that what is called the cell line. So cell line is nothing, it is after the first subculture the primary culture is known as a cell line. Okay, कि अगर मैंने बीटा सेल लिया और उसके बाद उसे सब कल्चर कर रही हूँ, उसे अनदर मीडिया में डाल रही हूँ, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट सब कल्चर, एंड दिस फर्स्ट सब कल्चर इज कॉल्ड द सेल लाइन. ओके, प्राइमरी सेल कल्चर में क्या था कि सभी सेल ग्रो हो रहे थे, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल. ओके, बट सेल लाइन क्यों की जाती है, तो सेल लाइन हमने आगे देखा कि मुझे पर्टिकुलर सेल का ही ग्रोथ चाहिए, मुझे इंसुलिन प्रोड्यूसिंग करने वाला ही सेल चाहिए, यानी कि बीटा सेल ही चाहिए, तो मैं उसे क्या करूंगी, सब कल्चर करूंगी, फर्स्ट सब कल्चर, और दिस इज कॉल्ड द सेल लाइन. ओके, or this cell line have limited lifespan and generate phenotypic and genotypic uniformity in a cells. Okay, तो सेल लाइन में क्या होगा, तो सेल लाइन यानी कि हम नॉर्मल सेल की सेल लाइन बना रहे हैं, तो उसमें लिमिटेड लाइफ स्पान होगा, और साथ ही साथ क्या होगा कि जनरेट फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक यूनिफॉर्मिटी हमें दिखने को मिलेगी, यानी कि बीटा सेल्स, सभी सेल्स जो है वो मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगे, और जीनोटाइपिकली यानी कि जीनेटिक अगर हमें देखें तो भी वो सभी सेल्स क्या होंगे, सेम्स होंगे. ओके, तो दिस इज कॉल्ड दैट सेल लाइन. Now you are clear about that all the definitions which are related our cell culture. Next video lecture we are talking about that what is a finite cell line and what is a continuous cell line. Okay, तो तब तक आप देखते रहिए मेरी चैनल रोशनी भट्ट, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर इस वीडियो में देखकर कुछ कंफ्यूजन है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.